A very warm welcome everyone on CA Sansar. Thank you so much for connecting with us. And myself, CS Sampurna Narula. And today we will discuss a very important topic on which we were receiving lots of queries. And the topic is COVID impact on income tax proceedings, which will cover legal complications in notices under Section 148 issued on or after 1st April 2021. Also, we will discuss issues and remedies in faceless assessments and limitations, issues and discussion on Supreme Court suo motu writ. So, this topic will basically cover what will happen if the limitation period has been expired during this COVID time, and what are its implications and complications. And by the end of this session, I'm really very sure that all the queries of everyone will get resolved. And for this session, we have a very renowned faculty with us. That is none other than Mr. C.A. Rajiv Jain. And he is a chartered accountant by profession. He has qualified his chartered accountancy in 1991. He is also a partner at SSAR and Associates. And along with that, he's BCom Honors and LLB. And also, he has been adjudged as and awarded as Best Speaker Award by NIRC ICAI. Also, his area of expertise is direct taxes and pleadings income tax appeals at Income Tax Appellate Tribunal. He used to give consultancy in the field of income tax finance management and audit. Also, he has authored various articles which have been published in various magazines and in newspapers. He is also a member of ITAT Bar Association, New Delhi. And we are really thankful, sir, to have you with us for imparting knowledge and to solve the queries and answer the queries of everyone. And over to you, sir. Thank you, Sampurna ji. Before I start my deliberation, in this second wave of COVID, almost each of us has lost someone near or dear. And Vivek Khurana, founder of CASansar.com, in fact, has also lost his father and mother during this second wave. So before I start my deliberation, मैं सभी अपने उन प्रियजनों के लिए जो इस कोविड के दौरान हमारे बीच नहीं रहे और हमारा साथ उनका छूट गया, उन सभी के प्रति अपनी भावपूर्ण और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो भी मेरे साथी हैं जिनके जीवन में कमी आई है अपनों से बिछुड़ने की, प्रभु आप सभी को शक्ति प्रदान करे, आप भविष्य में स्वस्थ रहें और इस कमी को अपने जीवन के साथ आपको चलना पड़ेगा, लेकिन प्रभु आपको शक्ति देंगे इस कमी से उभरने की। इस भावना के साथ नाउ आई कम बैक टू माय टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कन्वे माय थैंक्स टू CASansar.com। और अभी कोविड पीरियड सेकेंड वेव समाप्त ऐसा लग रहा है, शायद हो जाएगी, एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू रिकमेंस आवर प्रोफेशनल वर्क। और जब फर्स्ट वेव आई और तब से लेके अब तक देयर वाज so much limitation on human activity, and we have seen whether it was on the part of the government or on the part of the department or whether it is on the part of the SSC, nobody was able to complete the responsibilities placed upon them under the Income Tax Act. In today's discussion, I will confine myself to proceedings under Income Tax Act. तो हम देखते हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट देयर आर सर्टेन रिस्पांसिबिलिटीज व्हिच आर देयर placed upon the assessing officer to complete certain proceedings or to issue notices or to obtain sanctions or to obtain approvals, and which they could not do because of COVID. And similarly, there are certain responsibilities of compliances or filing appeal, filing returns, making payment of taxes, which is placed upon the SSC. And due to curtailment or human activity, the SSC was not in a position to complete those responsibilities. अब इस पूरे पीरियड में जो स्टैंड स्टिल क्रिएट हो गया और ये जो वैक्यूम क्रिएट हो गया,
how we are going to deal with this situation, और नई लिमिटेशन हमारे सामने अब क्या होंगी और उसकी क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस होंगी, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे ही अब इकोनॉमी ओपन अप होगी, जैसे ही सारी प्रोसीडिंग्स ओपन अप होंगी, तो हाउ डिपार्टमेंट इज गोइंग टू एक्ट, और डिपार्टमेंट को किस तरीके से लॉ ने लिमिटेशन में मदद की है, हाउ द डिपार्टमेंट हैज टेकन केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिपार्टमेंट, उनकी लिमिटेशन को किस तरीके से इंक्रीज किया, एंड हाउ डिफिकल्टी फेस्ड बाय द एसएससी इन मेकिंग कंप्लायंसेस इज रिमूव्ड. So during the course of this discussion, हम दो बातों की मुख्य रूप से चर्चा करेंगे. First is suo motu writ petition entertained by the Honorable Supreme Court, जिसका वाइडर इम्पैक्ट है इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एक्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट पिटिशन में क्या कहा और उसका इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा. एंड द सेकंड इज टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, which was issued on 30th March 2020, which was converted into Act on 29 September 2020, and thereafter there have been number of notifications issued under Section 3 subsection 1 of that Act, जिन्होंने उस सारी लिमिटेशंस को इम्पैक्ट किया है. तो इनकम टैक्स की कंप्लायंस में सुप्रीम कोर्ट की रिट पिटिशन के ऑर्डर का, और ये टोला, इसको हम टोला के नाम से पुकारते हैं, टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020, टोला और उसके सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशंस, इन दोनों का लिमिटेशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और साथ में हम समझेंगे द रियल मेस क्रिएटेड बाय दिस टोला एंड द नोटिफिकेशंस इश्यूड देयरआफ्टर with respect to notices under section 148 issued on or after 1st of April 2021 and faceless assessment proceedings. जो faceless assessment proceeding चल रही हैं assessment year 18-19 की, तो उसके ऊपर किस प्रकार का एक लीगल मेस इस टोला एक्ट से और उसके सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन से जो उस एक्ट के अंदर आए, वो जो क्रिएट हुआ, उसकी बारीकी को आज इस डिस्कशन में समझेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की रिट पिटिशन की. जिस समय कोविड का फर्स्ट फेज आया, the difficulties faced by the various litigants throughout the country, the Supreme Court recognized the fact कि कोविड आने की वजह से due to curtailment on human activity, litigants will not be able to file their suits, litigants will not be able to file their appeals, और वो जो लिमिटेशन उनकी एक्सपायर हो रही थी ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, तो दैट डिफिकल्टी हैज टू बी एड्रेस्ड. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट पिटिशन नंबर 3 ऑफ 2020, सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च 2020 को इस रिट पिटिशन को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए ऑर्डर पास किया, और उस ऑर्डर में उन्होंने कहा दैट कोविड पीरियड को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया. कोविड पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम, जो फर्स्ट फेज है कोविड पीरियड का, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 15th of March 2020. तो उन्होंने कहा कि जो 15 मार्च 2020 से जो पीरियड शुरू हो रहा है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग लिमिटेशंस फॉर फायरिंग वेरियस अपील्स और सूट्स अंडर एवरी लॉ, अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एक्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोविड पीरियड उन्होंने एक तरीके से अनाउंस किया कि 15 मार्च 2020 से जो पीरियड है, इससे बाद का पीरियड टिल फर्दर ऑर्डर्स, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टार्टिंग डेट कोविड की फिक्स कर दी कि जो कोविड पीरियड है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 15th of March 2020, और उसकी जो एंडिंग पीरियड है सुप्रीम कोर्ट ने खुली छोड़ी कि टिल फर्दर ऑर्डर वी विल मेक एन ऑर्डर, कि कब तक का पीरियड जो है वो लिमिटेशन में काउंट नहीं होगा. फिर 8 मार्च 2021 को, जिस समय कंट्री ओपन अप हो चुकी थी, then Supreme Court made another interim order, another order in this writ petition, the same writ petition. उन्होंने कहा because the country has returned to normalcy और काम सारे शुरू हो गए हैं, courts have also started working physically. तो उन्होंने कहा कि ये कोविड पीरियड जो है 14 मार्च 2021 को पूरा हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कोविड पीरियड जो स्टार्ट हुआ था हमारा 15 मार्च 2020 से, वो 14 मार्च 2021 को, यानी पूरे एक
साल पीरियड, और ये किसी भी सूट और अपील की लिमिटेड पीरियड कंसीडर नहीं होगा. दैट इज द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट इन दिस रिट पिटीशन नंबर 3 ऑफ 2020 ऑन 8 मार्च 2021. ठीक है, उन्होंने कहा कि 15 मार्च के बाद, 15 मार्च 2021 के बाद हर एक पिटिशनर को, हर एक अपील वाले को 90 दिन का समय मिलेगा, और 90 दिन में जो रिमेनिंग पीरियड उसका पुरानी लिमिटेशन का था वो उसमें ऐड कर देंगे, विच एवर इज हायर, अपनी अपीलों को परस्यू करने के लिए. राइट. अब जिस समय ये 8 मार्च को ऑर्डर आया, उसके बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में पेंडेमिक दोबारा से फैल गया, सेकेंड वेव आ गई और 19 अप्रैल से दिल्ली में लॉकडाउन आ गया. राइट. टोटल कर्टेलमेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. तो सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को फिर दोबारा उस रिट पिटीशन को कंसिडर किया, और जब दोबारा उस रिट पिटीशन को कंसिडर किया, देन सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो हमने बाद वाली डेट गई थी 14 मार्च, वो उसके बाद का पीरियड टिल फर्दर ऑर्डर्स, दैट विल आल्सो बी एक्सक्लूडेड इन काउंटिंग लिमिटेशंस. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया 27 अप्रैल 2021 को. यानी कि इन तीनों ऑर्डर का जो फाइनल इंपैक्ट हुआ वो ये हुआ कि 15 मार्च 2020 से लेकर वो पीरियड जो अभी फर्दर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आएगा, that will not be considered for the purpose of counting limitations for filing any appeal or suit. right. बात सुन में आ गई. यानी कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्टिंग डेट बता दी 15 मार्च 2020 और एंड डेट अभी नहीं बताया है. सुप्रीम कोर्ट का फर्दर ऑर्डर आएगा इस रिट पिटीशन के अंदर, और उस फर्दर ऑर्डर आने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा पीरियड लिमिटेशन काउंट करने के लिए इंक्लूड नहीं होगा, कंसिडर नहीं होगा. राइट. वी हैव टू वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. लेकिन इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स में इस ऑर्डर का जो इंपैक्ट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ लिटिगेशंस. ये सिर्फ लिटिगेशन के संबंध में ऑर्डर अप्लाई होगा. यानी कि जो इनकम टैक्स एक्ट की जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स है उसमें ये ऑर्डर अप्लाई नहीं होगा. राइट. बात समझ में आ गई. यानी कि जो असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही है उसमें ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन सीआईटी अपील पर अप्लाई होगा. द आंसर इज यस. सीआईटी अपील के ऊपर ये ऑर्डर अप्लाई होगा, ट्राइब्यूनल की अपील के ऊपर ये ऑर्डर अप्लाई होगा. तो 15 मार्च 2020 के बाद अगर आपका कोई ऑर्डर हुआ है या 15 मार्च 2020 से पहले कोई आपका ऑर्डर हुआ है और जिसकी लिमिटेशन 15 मार्च 2020 को एक्सपायर नहीं हुई थी, तो 15 मार्च 2020 से लेके अभी भी जो पीरियड चल रहा है इट विल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग योर लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अपील. और जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा दैट विल प्रिवेल. इन द मीन टाइम डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला, सर्कुलर नंबर 8 2021, 30 अप्रैल 2021 को, और उन्होंने कहा कि जो सीआईटी अपील की लिमिटेशन है उसकी जो ड्यू डेट है दैट विल बी 31 मई 2021. तो बाद में सीबीडीटी को रिप्रेजेंटेशन दिया कि साहब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है एंड यू कैन नॉट इशू अ सर्कुलर ओवर रूलिंग द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. तो फिर सीबीडीटी ने दे केम आउट विद अनदर सर्कुलर नंबर 10 2021 ऑन 25th of May 2021 इन लाइन विद द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, और उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है दैट विल प्रिवेल. ठीक है सर. अब हमें बात समझ में आ गई. अपील फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंपैक्ट समझ में आ गया, और ये भी बात समझ में आ गई कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इट विल नॉट अप्लाई ऑन असेसमेंट प्रोसीडिंग्स. इट इज एप्लीकेबल ओनली विद रिस्पेक्ट टू लिटिगेशन. ठीक है जी. यानी इनकम टैक्स की जो अपील है. अब हम बात करते हैं टोला एक्ट 2020. अब ये जो पहले ऑर्डिनेंस की फॉर्म में आया 31 मार्च 2020 को, और फिर इसको बाद में एक्ट में कन्वर्ट कर दिया, टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट, रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस 2020. यूं तो इसमें और भी अमेंडमेंट है, लेकिन इसका सबसेक्शन 3 जो है that pertains to considering the limitation or situation arising out of COVID. वो उसकी बात करता है. जो सेक्शन 3 है वो कोविड की रिलैक्सेशन की बात करता है कि कोविड पीरियड क्या है. उस समय उन्होंने कहा सेक्शन 3 का जो चार्जिंग सेक्शन है
उसको पढ़ेंगे। अब इसकी जो स्कीम को समझे सेक्शन 3 की, सेक्शन 3 पर्टिकुलरली सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ टोला, उसकी स्कीम में उन्होंने दो तरीके से बात की है कि एक तो बात की है उन्होंने कोविड पीरियड को डिफाइन करने की कोशिश की है। व्हाट इज कोविड पीरियड, किस पीरियड से किस पीरियड तक का समय जो है वो कोविड पीरियड में काउंट किया जाएगा, और उस कोविड पीरियड के दौरान यदि कोई लिमिटेशन फॉल करती है, ठीक है, तो उस लिमिटेशन का अगर डिपार्टमेंट को कोई ऑर्डर कंप्लीट करना था, कोई प्रोसीडिंग कंप्लीट करनी थी, कोई नोटिस इश्यू करना था, तो डिपार्टमेंट के उस पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा और उसकी न्यू डेट क्या होगी, राइट। और कोई एसएससी को यदि कोई कंप्लायंस करनी थी, कोई रिटर्न फाइल करनी थी, कोई अपील करनी थी, तो उसकी ड्यू डेट क्या होगी, राइट। तो इस टोला के सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 का जो मैंडेट है, दे हैव डिफाइंड कोविड पीरियड एंड दे हैव डिफाइंड द डेट ऑफ, दे हैव नोटिफाइड द डेट ऑफ कंप्लायंस। तो और गवर्नमेंट को ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को डेलीगेट कर दी कि जो टोला एक्ट में जो डेट लिखी, कोविड पीरियड लिखा और डेट ऑफ कंप्लायंस लिखी, ठीक है, तो उसको जो गवर्नमेंट जो है वो बाद में नोटिफाई करके बढ़ा सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, राइट। बात समझें, सेक्शन 3(1) के 3 चीजें हैं। कोविड का स्टार्टिंग पीरियड सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ने फिक्स कर दिया कि कोविड किस दिन से शुरू माना जाएगा, कोविड किस दिन को एंड होगा, वो डेट उन्होंने लिख दी 31 दिसंबर 2020, और साथ में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर डेलीगेट कर दी कि वो 31 दिसंबर 2020 को वो बढ़ा सके। लॉ में उनको अथॉरिटी दे दी अंडर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अंडर द नोटिफिकेशन इश्यूड बाय द सीवीडीटी, जो एंडिंग डेट है कोविड की 31 दिसंबर जो एक्ट के अंदर लिखी है, उसको बढ़ाने की पावर दे दी, डेलीगेट कर दी सीवीडीटी को कि आप 2 साल तक इस पावर को बढ़ा सकते हैं। फिर कहा कि जो एक्शन कंप्लीट होना है एक्ट के अंदर, उसकी तारीख उन्होंने लिख दी 31 मार्च 2021। अब उन्होंने कहा वेयर एनी टाइम लिमिट हैज बीन स्पेसिफाइड और प्रिस्क्राइब्ड और नोटिफाइड अंडर एनी स्पेसिफाइड एक्ट व्हिच फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 20th मार्च 2020, यानी कि यहाँ जो कोविड पीरियड शुरू हुआ वो शुरू हुआ 20 मार्च 2020 से। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया था 15 मार्च 2020 से। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5 डेज। जो टोला है, टोला में जो हमारा कोविड पीरियड शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है 20 मार्च 2020 से टू 31st December 2020, और सच अदर डेट आफ्टर 31st day of December 2020 as central government may by notification specify in this behalf for the completion or compliance of such action. Such action को दो टुकड़ों में उन्होंने डिवाइड कर दिया, एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट एंड एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द एसएससी। और वो जो डेट उन्होंने स्पेसिफाई कर दी वो कर दी 31st March 2021 और सच अदर डेट आफ्टर 31st March 2021 as the central government may by notification specify in this behalf। साथ में एक प्रोवाइजो ऐड किया सबसेक्शन सेक्शन 3(1) के अंदर, provided that the central government may specify different dates for completion or compliance of different actions। बात समझ में आती है? अब हम समझे इस एक्ट के मैंडेट को दोबारा से समझते हैं, क्योंकि ये इस अंडरस्टैंडिंग से हमारा फ्यूचर की बिल्डिंग डेवलप होगी और फ्यूचर के नोटिफिकेशन का इम्पैक्ट हमें समझ में आएगा, वेदर दोज नोटिफिकेशंस आर अल्ट्रा वायरस द एक्ट और नॉट। उन्होंने कहा जो कोविड पीरियड है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 20th मार्च, इट विल एंड ऑन 31st दिसंबर, और जो 31st दिसंबर की एंडिंग डेट है सेंट्रल गवर्नमेंट इस डेट को बढ़ा सकती है, उसको नोटिफाई करके सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर डेलीगेट कर दी कि इस डेट को बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा इस कोविड पीरियड के अंदर जो भी लिमिटेशन की डेट फॉल करेगी उसकी जो डेट ऑफ कंप्लायंस होगी दैट विल बी अप टू 31st मार्च 2021 और सच अदर डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट को जो डेलीगेटेड पावर दी वो दो डेटों के लिए दी कि कोविड के पीरियड की एंड डेट की आप नोटिफाई कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, और जो डेट ऑफ कंप्लायंस है वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। बात समझ में आ गई? यानी कि जो 31 मार्च की आपने डेट ऑफ कंप्लायंस फिक्स किया आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और जो आपका कोविड पीरियड है जिसको आपने 31 दिसंबर 2020 से स्पेसिफाई किया है एक्ट के अंदर, उसको भी सीबीडीटी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड कर सकती है। साथ में जो प्रोवाइजो दिया
वो जो प्रोवाइजो है वो सिर्फ 31 मार्च वाली डेट के लिए है। उन्होंने कहा कि जो डेट ऑफ कंप्लायंस है वो डिफरेंट एक्शन के लिए डिफरेंट हो सकती है। जब हम एक्ट में देखेंगे तो एक्ट में उसने इस 31 मार्च वाली डेट को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि टीडीएस की रिटर्नों के लिए आपके लिए डिफरेंट डेट होगी, टीसीएस की रिटर्नों के लिए आपके लिए डिफरेंट रेट होगी। और बाद में जो नोटिफिकेशन आए तो हमने देखा कि इनकम टैक्स की रिटर्नों के लिए आपकी डिफरेंट डेट होगी। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट डिफरेंट डेट हो सकती है। बट आई एम सेइंग कि जो दो डेट आपको नोटिफाई करनी थी, फर्स्ट डेट इन प्लेस ऑफ 31 दिसंबर 2020 एंड द सेकंड डेट इन प्लेस ऑफ 31 मार्च 2021। अब ये जो प्रोवाइजो है सेक्शन का, इस सेक्शन के हिसाब से दिस डेट ऑफ 31 मार्च 2021 may be a dynamic date, different date for different actions. लेकिन जो कोविड पीरियड है इट हैज टू बी यूनिफॉर्म। कोविड पीरियड की जो डेट है वो डिफरेंट नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? यानी 31 दिसंबर की जो कोविड पीरियड एंड हो रहा है, जब आप उसको बढ़ाएंगे तो फॉर ऑल एक्शन वो कोविड पीरियड सबके लिए बढ़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक आइटम के लिए आपका कोविड पीरियड कुछ और होगा, दूसरे एक्शन के लिए कोविड पीरियड कुछ और होगा, तीसरे एक्शन के लिए कोविड पीरियड कुछ और होगा। इस तरीके से आप नहीं कर सकते। एक्ट की जो मैंडेट है, एज फार एज माय लीगल अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर डेलीगेट की है प्रिस्क्राइबिंग डिफरेंट डेट फॉर डिफरेंट एक्शंस, वो 31 मार्च 2021 के लिए है, नॉट फॉर 31 दिसंबर 2020। जब भी आप कोविड पीरियड एक्सटेंड करेंगे तो हर एक एक्शन के लिए एक्सटेंड होगा, और जो डेट ऑफ कंप्लायंस है वो आप डिफरेंट एक्शंस के लिए आप डिफरेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दिस इज द मैंडेट ऑफ सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। साथ में इसी एक्ट में एक सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 में उन्होंने कहा कि जितने भी नोटिफिकेशन इश्यू होंगे इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट में जो सेक्शन 3(1) में जो पावर मिली, इट हैज टू बी कंसिस्टेंट विद द एक्ट। जो एक्ट है, अगर कोई भी नोटिफिकेशन इससे इनकंसिस्टेंट होगा तो दैट विल बी अल्ट्रा वायरस। और साथ में उन्होंने सेक्शन 10 में कहा कि ये जो नोटिफिकेशन की जो पावर है दैट इज ओनली अप टू 30 सितंबर 2022। यानी कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसकी बाउंड्रीज इस एक्ट के अंदर डिफाइन कर दी गई कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में आप क्या कर सकते हो और आप क्या नहीं कर सकते। जो नोटिफिकेशन आना है वो आप 31 सितंबर 2022 तक ला सकते हो, ठीक है सर, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एक्ट ला सकते हो। आप 31 मार्च की डेट के लिए डिफरेंट एक्शंस के लिए डिफरेंट डेट नोटिफाई कर सकते हो, सीबीडी नोटिफाई कर सकती है। और जो 31 दिसंबर वाली जो डेट है इसके लिए आपको यूनिफॉर्मली कोविड पीरियड को एक्सटेंड करना पड़ेगा। दिस इज द मैंडेट ऑफ दिस लेजिस्लेशन और दिस टोला एक्ट विच इज डेलीगेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इस अंडरस्टैंडिंग से अलग यदि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, दैट नोटिफिकेशन विल बी अल्ट्रा वायर्स ऑफ द एक्ट, राइट। ये मुझे इस पूरे जो एक्ट को मैंने सेक्शन 3(1) को डाइसेक्ट करके आपको समझाया, इसको समझाने का ये बेसिक पर्पस था। नाउ अब हम देखते हैं कि टोटल कितने नोटिफिकेशन इस एक्ट को बनने के बाद आए और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या क्या किया। नोटिफिकेशन नंबर 88 2020 29 अक्टूबर 2020 को एक्ट के बाद, टोला एक्ट के बाद पहला नोटिफिकेशन आया। इस उन्होंने आईटीआर और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट बढ़ा दी, यानी जो 31 मार्च वाली डेट थी उसके साथ फिर बदल किया, राइट। नोटिफिकेशन नंबर 93/2020 31 दिसंबर 2020 को आया। यहां पर इन्होंने जो कोविड पीरियड है, जो 31 दिसंबर वाली डेट है, उस डेट को बढ़ाकर कर दिया 30 मार्च। बात समझ में आ गई? यानी कि जो कोविड पीरियड है जो हमारा 20 मार्च 2020 को शुरू हुआ था टोला एक्ट के अंदर, और टोला एक्ट में जो 31 दिसंबर 2020 को खत्म हो गया था, तो यहां पर उन्होंने यूनिफॉर्मली नोटिफिकेशन 93/2020 में उस 31 दिसंबर 2020 की डेट को बढ़ाकर कर दिया 30 मार्च 2021, राइट। और डेट ऑफ कंप्लायंस और कंप्लीशन जो थी वो 31 मार्च जो थी वो 31 मार्च रहने दी, राइट। फिर नेक्स्ट आया नोटिफिकेशन नंबर 10/2021 27 फरवरी 2021। अब यहां उन्होंने क्या कहा, अब यहां से गड़बड़ शुरू हुई।
उन्होंने कहा फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर 21 इम्पोजिंग पेनल्टी, जो कोविड पीरियड की जो डेट है वो 30 मार्च 2021 की बजाय इट विल बी 29 जून 2021। यानी कि कोविड पीरियड की जो डेट यूनिफॉर्मली गवर्नमेंट को डेलीगेट की गई थी एक्सटेंड करने के लिए, यहां पर उन्होंने ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी, जो 31 दिसंबर वाली डेट थी जिसको पहले उन्होंने 30 मार्च किया, तो उन्होंने कहा कि यहां पर इस डेट को उन्होंने डायनेमिक कर दिया। यानी कि बाकी सारे एक्शंस के लिए तो 30 मार्च रहेगी, लेकिन इम्पोजिंग ऑफ पेनल्टी के लिए दिस कोविड एंड पीरियड डेट विल बी 29 जून 2021। ठीक है। अब ये इन माय लीगल अंडरस्टैंडिंग जो 31 दिसंबर की जो डेट थी जो बढ़ानी है, इट कैन ओनली बी एक्सटेंडेड यूनिफॉर्मली। सब लॉ के लिए, सब हर एक एक्शन के लिए आपको यूनिफॉर्म रखनी पड़ेगी। ये डेट आपकी डायनेमिक अलग अलग एक्शन के लिए अलग अलग डेट नहीं हो सकती। ठीक है। फिर डेट ऑफ इसी सर्कुलर में, इसी नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन नंबर 10/2021, उन्होंने कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट, इसकी जो लिमिटेशन थी वो बढ़ाकर कर दी उन्होंने 30 अप्रैल। और फेसलेस असेसमेंट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको भी समझेंगे। फिर एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 20/2021 डेटेड 31 मार्च 2021। उन्होंने कहा रीड विद सेक्शन 148 फॉर द पर्पस ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 रीड विद सेक्शन 149 एंड सेक्शन 151 डेट ऑफ कोविड पीरियड, जो 31 दिसंबर थी, जो बाद में एक्सटेंड की 30 मार्च के लिए, दैट विल बी 31 मार्च 2021। बात समझ में? अब उन्होंने क्या कहा, जो कोविड पीरियड की डेट थी जो 20 मार्च 2020 को स्टार्ट हुआ, पहले वो एक्ट में आई 31 दिसंबर, एक्ट के बाद नोटिफिकेशन में उसको यूनिफॉर्मली 30 मार्च के लिए उन्होंने एक्सटेंड किया। अब यहां पर बाद में टुकड़ों टुकड़ों में पेनल्टी के लिए कहा कि कोविड पीरियड की एंड डेट होगी 29 जून, और फॉर द पर्पस ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 कोविड पीरियड की जो एंडिंग डेट होगी दैट विल बी 31 मार्च। राइट। तो ये जो 31 दिसंबर की जो यूनिफॉर्म कोविड पीरियड आपको प्रिस्क्राइब करने की पावर डेलीगेट करी गई थी, यहां पर व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन इज ये दोनों जगह पावर को एक्सीड कर गए। इन माय कंसिडर्ड व्यू द गवर्नमेंट हैज एक्सीडेड द पावर डेलीगेटेड टू इट, और यहां पर कोविड पीरियड को सिर्फ यूनिफॉर्म आप एक्सटेंड कर सकते थे, आप टुकड़ों में नहीं कर सकते थे कि 148 के लिए कोविड पीरियड अलग होगा, पेनल्टी के लिए कोविड पीरियड अलग होगा, और बाकी प्रोसीडिंग्स के लिए कोविड पीरियड अलग होगा। जो डेट ऑफ कंप्लायंस और कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग है वो आप डिफरेंट कर सकते हो, एक्ट में आपको मैंडेट दिया है, लेकिन कोविड पीरियड डिफरेंट करने का मैंडेट डेलीगेटेड पावर में नहीं है। सो राइट। तो ये जो 31 मार्च के सर्कुलर में ये इन्होंने जो कोविड पीरियड का सिर्फ नोटिस इश्यू करने के लिए जो पीरियड बढ़ाया है, दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पावर डेलीगेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन माय कंसिडर्ड ओपिनियन। इसी एक्ट में, इसी नोटिफिकेशन में, 31 मार्च के नोटिफिकेशन में उन्होंने जब नोटिस की बात कर रहे हैं, इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148, तो वो करते करते उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया जिसका इम्पैक्ट मैं अभी जब और 148 को डिस्कशन करूंगा तो उसके साथ डिस्कशन करूंगा कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कि जिनकी लिमिटेशन 148 रीड विद सेक्शन 149 और सेक्शन 151, जिनकी लिमिटेशन 31 मार्च 2021 को एक्सपायर हो रही है, फॉर द पर्पस ऑफ इश्यू ऑफ नोटिसेस, उसके लिए नोटिस कैन बी इश्यूड, डेट ऑफ एक्शन कैन बी टेकन अप टू 30th जून, और ओल्ड लॉ प्रिवेल करेगा विच वाज अप टू 31 मार्च 2021। इसको भी मैं दोबारा से बाद में कवर करूंगा। फिर एक और नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 38 2021, 27 अप्रैल को आया, और 27 अप्रैल को उन्होंने कहा कि जो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट की डेट है, इट इज एक्सटेंडेड अप टू 30th जून,
और जो नोटिस इशू करना है अंडर सेक्शन 148, 140, 149 रीड विद सेक्शन 151, इट इज एक्सटेंडेड अप टू 30th जून। ठीक है। अब असेसमेंट कंप्लीशन में समझ में आ गई कि असेसमेंट कंप्लीशन की जो डेट है दैट विल बी 30th जून 2021। अब फेसलेस असेसमेंट में इसको किस तरीके से हिट किया, इसको अभी बाद में समझेंगे। अब हम समझते हैं नोटिस इश्यूड अंडर सेक्शन 148 कि इस लिमिटेशन का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। इस टोला एक्ट का और जो नोटिफिकेशन आए, तो जितने भी जो नोटिस अंडर सेक्शन 148 इशू होने हैं ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021, अब उनके वायर्स को समझते हैं। वी ऑल नो कि सेक्शन 148 बाय द फाइनेंस एक्ट 2021 हैज अंडरगॉन कंप्लीट चेंज। 31 मार्च 2021 तक का जो सेक्शन रीओपनिंग का सेक्शन है 148, उसका मैंडेट डिफरेंट है। 1 अप्रैल 2021 से जो सेक्शन 148 है उसका मैंडेट बिल्कुल डिफरेंट है। 31 मार्च 2021 तक असेसिंग ऑफिसर बिना सैंक्शन के 4 साल तक का केस रीओपन कर सकता है। विद सैंक्शन अंडर सेक्शन 151 वो 6 साल तक का केस रीओपन कर सकता है। 1 अप्रैल के बाद से अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जो रीओपनिंग होगी इट इज कन्फाइंड टू 3 years। जो 6 साल का पीरियड था इट इज नाउ रिड्यूस्ड टू 3 years। इन द स्पेशल केस इट विल बी 10 years। और प्रीवियस जो रिजीम था, हम बात करेंगे ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। अप टू 31 मार्च तक का जो रिजीम है वो ओल्ड रिजीम, 1 अप्रैल से जो रिजीम है वो नया रिजीम। तो 31 मार्च तक बिना सैंक्शन के आप 4 साल खोल सकते हो। विद सैंक्शन अंडर सेक्शन 151 आप 6 साल खोल सकते हो। अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आप 16 साल खोल सकते हो। अंडर द न्यू रिजीम जो 1 अप्रैल 2021 और उसके बाद से शुरू हो रहा है उसमें आप 3 साल खोल सकते हो। एंड अंडर द स्पेशल प्रिस्क्राइब सर्कमस्टेंसेस आप 10 साल खोल सकते हो। राइट, ये बात समझ में आ गई। यानी कि लॉ है सेक्शन 140 had the entire scheme of section 147 to 151 has undergone a complete change। अब इन्होंने क्या कहा, पहले हमने बात कर ली कि जो आपने 148 के नोटिस इश्यू करने के लिए जो आपने 31 मार्च की नोटिफिकेशन से जो कोविड पीरियड की डेट 30 मार्च को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया, दिस पावर is not available to the central government under the law in my considered opinion। यानी कि आप डिफरेंट कोविड पीरियड फॉर डिफरेंट एक्शन आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप डेट ऑफ कंप्लायंस डिफरेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन कोविड पीरियड आप डिफरेंट फॉर डिफरेंट एक्शंस प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ये जो नोटिफिकेशन है 31 मार्च वाला, जिसने 31 मार्च तक कोविड पीरियड को सिर्फ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 जो बढ़ाया, दैट इज अल्ट्रा वायर्स। वो एक्ट की मैंडेट से परे है, उसके बाहर है। राइट, अब दूसरा इंप्लीकेशन इसका क्या हुआ आप समझते हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने इंसर्ट किया 31 मार्च के सर्कुलर में, 31 मार्च के नोटिफिकेशन में, उस एक्सप्लेनेशन में कहा कि जितनी भी लिमिटेशन आपकी 31 मार्च 2021 को एक्सपायर हो रही है अंडर सेक्शन 148, ठीक है, उनके केस में जो कंप्लायंस की डेट होगी दैट विल बी 30th जून, और उनके ऊपर ओल्ड लॉ लगेगा, पुराना सेक्शन 148 लगेगा। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या कहा, अब हम समझते हैं कि कौन कौन से साल का लिमिटेशन हमारी 31 मार्च 2021 को अंडर सेक्शन 148 एक्सपायर हो रही है। विदाउट सैंक्शन 31 मार्च 2021 तक वो असेसमेंट ईयर 16-17 तक का केस खोल सकता है, उसके पीछे नहीं जा सकता। लेकिन हमारा कोविड पीरियड स्टार्ट हो गया था 20 मार्च 2020 से, और वो डेट एक्सटेंड हो गई थी 31 मार्च 2021। यानी जो असेसमेंट ईयर जो 15-16 है, जो हमारा पिछले साल एक्सपायर हो रहा था, 31 मार्च 2020 को एक्सपायर हो रहा था, उसकी जो टाइम बाइंग लिमिटेशन है इट वाज एक्सटेंडेड अप टू 31 मार्च 2021। यानी कि अगर बिना सैंक्शन के यदि आपको खोलना है तो असेसिंग ऑफिसर 2 साल का केस खोल सकता है, असेसमेंट ईयर 15-16 एंड असेसमेंट ईयर 16-17।
अगर विद द सैंक्शन अंडर सेक्शन 151 अगर उसको केस खोलना है तो 31 मार्च 2021 को जो मेरा केस एक्सपायर हो रहा है वो रहा है मेरा असेसमेंट ईयर 14-15 का। असेसमेंट ईयर 14-15 की लिमिटेशन 31 मार्च 2021 को एक्सपायर हो रही है, और जो असेसमेंट ईयर 13-14 की लिमिटेशन मेरी 31 मार्च 2020 को एक्सपायर हुई थी, तो टोला ने उसको बढ़ाकर कर दिया 31 मार्च 2021, यानी 31 मार्च 2021 को मेरी 2 साल की लिमिटेशन विद सैंक्शन एक्सपायर हुई है, असेसमेंट ईयर 13-14 और असेसमेंट ईयर 14-15। राइट, बात सुनना। यानी कि 4 सालों की जो लिमिटेशन है असेसमेंट ईयर 13-14 एंड 14-15 विद सैंक्शन अंडर सेक्शन 151, असेसमेंट ईयर 15-16 एंड असेसमेंट ईयर 16-17 विदाउट रिक्वायरिंग सेक्शन अंडर सेक्शन 151, ये 4 सालों की जो लिमिटेशन है ये हमारी 31 मार्च 2021 को एक्सपायर हो रही है। तो इस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या कहा कि ये जो 4 साल है इनका जो नोटिस इश्यू हो सकता है वो 30 जून तक हो सकता है। इनका जो नोटिस इश्यू हो सकता है वो 30 जून तक हो सकता है, और जो लॉ अप्लाई करेगा वो ओल्ड रिजीम में अप्लाई करेगा, सेक्शन 148 का ओल्ड रिजीम में अप्लाई करेगा। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या कहा, अब 1 अप्रैल 2021 से हमारा नया रिजीम आ गया, और इस नए रिजीम में 3 साल आप खोल सकते हो, यानी असेसमेंट ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20 और असेसमेंट ईयर 20-21। इन 3 साल का केस 1 अप्रैल 2021 एंड देयर आफ्टर कैन बी रीओपन अंडर न्यू रिजीम। बात समझा नहीं? अब इस नोटिफिकेशन ने क्या किया, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक इन 4 सालों के लिए असेसमेंट ईयर 13-14, 14-15, 15-16, 16-17 इनके लिए ओल्ड रिजीम का कानून लगेगा, और 3 सालों के लिए 18-19, 19-20 और 20-21 इनके लिए नए रिजीम का कानून लगेगा, और असेसमेंट ईयर 17-18 ये दोनों रिजीम में से बाहर हो गया। अब ये पूरी खिचड़ी ऐसी पक गई इस नोटिफिकेशन से, ये दाल और चावल ऐसे मिक्स हो गए, अब इनको अलग करना पॉसिबल नहीं है। व्हाट दिस नोटिफिकेशन इज नाउ ट्राइंग टू से कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 30 जून 2021 तक दोनों लॉ प्रिवेल करेंगे। 4 साल के लिए पुराना सेक्शन 148 प्रिवेल करेगा, 3 साल के लिए नया सेक्शन 148 के लिए प्रिवेल करेगा, और बीच के 1 साल के लिए कोई सेक्शन प्रिवेल नहीं करेगा। राइट, तो ये इतना बड़ा कंफ्यूजन और लीगल खिचड़ी इस नोटिफिकेशन के द्वारा यहां पर पक गई है। राइट, सो all notices under section 148 with respect to assessment year 13-14 to assessment year 16-17, ये 4 सालों के जो नोटिसेस अंडर द ओल्ड रिजीम जो इश्यू में आफ्टर 1 अप्रैल 2021, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वेदर दे आर लीगल और इलीगल। एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंस मैं यहाँ पर बता दूं, इस पूरे लीगल इश्यू को लेकर Bombay High Court has already admitted a writ petition titled as Armada D1 PT Limited versus DCIT, writ petition number 11,766 of 2021, जिसमें असेसमेंट ईयर 13-14 का नोटिस इशू किया 7 अप्रैल 2021 को। तो ये सारा का सारा मैटर बम्बई हाई कोर्ट के सामने इस समय लिस्ट हो चुका है, एंड they have to deliberate upon this issue. Department is given an opportunity to file their reply. Now there is a question mark, जितने भी लोगों के पास 1 अप्रैल 2021 के बाद सेक्शन 148 का कोई नोटिस आता है, now there is a substantial legal issue whether these notices are legal or not, whether these notices are ultra vires or not, or whether the notification number 20 2021 dated 31st March 2021 is ultra vires or not. तो ये सारे लीगल इशू 148 के जितने भी नोटिसेस आफ्टर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021 इशू हुए हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने बात की सेक्शन 148 की। अब हम बात करते हैं फेसलेस असेसमेंट्स की, कि फेसलेस असेसमेंट्स में किस तरीके से कॉम्प्लिकेशन इन नोटिफिकेशंस के द्वारा हुई। वी ऑल नो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में कोविड ने पीक कर लिया,
और बेशक ऑफिशियल लॉकडाउन कहीं 17 अप्रैल से हुआ, कहीं 18 अप्रैल से हुआ, कहीं 19 अप्रैल से हुआ, बट बाय एंड लार्ज फर्स्ट वीक और सेकंड वीक से हमने देखा कि कोविड हैज पीक्ड और लोग अपने घरों में घबराकर उस दहशत में बैठ गए थे एंड ह्यूमन एक्टिविटी वाज कर्टेल्ड। अब जो असेसमेंट है वो पहले खत्म होने थे, हमारे जो टाइम बारिंग थी असेसमेंट की तो वो थी 31 मार्च 2021। जो टोला ने बढ़ाई, टोला ने जो लिमिटेशन बढ़ाई असेसमेंट और रीअसेसमेंट कंप्लीट होने की, इट वाज 31 मार्च 2021। अब 27 फरवरी 2021 को नोटिफिकेशन नंबर 10 से इन्होंने जो 31 मार्च की टाइम बारिंग थी उसको बढ़ा दिया 30 अप्रैल 2021। आई हैव नो इशू विद दिस। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही फर्स्ट वीक में कोविड पीक हुआ, people were not able to make compliances of the notices issued on the portal, क्योंकि फेसलेस असेसमेंट है, आपको शो कॉज नोटिस आ रहा है, आपको ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आ रहा है, एंड डिपार्टमेंट वाज अंडर कंप्लीट पैनिक, क्योंकि डिपार्टमेंट के लिए जो लिमिटेशन है टू कंप्लीट द असेसमेंट ऑर्डर इट वाज 30 अप्रैल 2021। और जो एसएससी वर्ल्ड है, अप्रैल के अंदर एवरी एसएससी वाज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर and he was not in a position to make compliance on the portal, right? और ऐसा भी हुआ कि डिपार्टमेंट की जो ह्यूमन स्ट्रेंथ थी that may also be limited, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी जहां भी है, चाहे वो डिपार्टमेंट का आदमी है, चाहे वो एसएससी का आदमी है, इट इज इक्वल फॉर एवरी वन ऑफ देम। तो जो अप्रैल के अंदर जो डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ और 30 अप्रैल 2021 की टाइम बारिंग डेट थी, 19 अप्रैल को लॉकडाउन लग गया। nobody had access to their official records, सबकी फाइलें ऑफिस में रखी थी, सबके पासवर्ड्स ऑफिस में रखे हुए थे, एंड द पर्सन इज नॉट इन ए पोजीशन टू कलेक्ट एनी थर्ड पार्टी एविडेंस, क्योंकि थर्ड पार्टी एविडेंस के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, यू विल रिक्वायर ह्यूमन एक्टिविटी, राइट? तो जितने भी नोटिसेस आपके अप्रैल के महीने में पोर्टल के ऊपर पोस्ट हुए, इट वुड नॉट हैव अमाउंटेड टू इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी। यानी कि डिपार्टमेंट के पास क्योंकि टाइम बारिंग का प्रेशर था, तो व्हाट द डिपार्टमेंट डिड इज कि इस दौरान उन्होंने धड़ाधड़ असेसमेंट कंप्लीट करने शुरू कर दिए। और जो डिपार्टमेंट ने जाकर जो डेट एक्सटेंड की वो की 27 अप्रैल 2021 को, जब नोटिफिकेशन नंबर 38 से उन्होंने इसका टाइम बारिंग बढ़ा के कर दिया 30 जून 2021। लेकिन अप्रैल में इस प्रेशर में डिपार्टमेंट ने यूनिलैटरली विदाउट हैविंग एनी कोऑपरेशन और कंप्लायंस फ्रॉम द एसएससी उन्होंने बहुत सारे असेसमेंट कंप्लीट कर दिए, और विदाउट अफोर्डिंग एनी अपॉर्चुनिटी अब हमारी जो फेसलेस असेसमेंट है उसकी बहुत सारी मैंडेटरी इंग्रेडिएंट है। नंबर 1, आपको ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर देना पड़ेगा। नंबर 2, आपको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। एंड नंबर 3, in case the facts of the case are complicated and SSC has filed a petition for virtual hearing, SSC कहता है कि आप मेरी बात सुनिए और मेरी बात को सुनने का मौका दीजिए, मुझे आप समझाने का मौका दीजिए, और अगर आप मुझे समझाने का मौका देंगे तो he has filed a petition। अब ये सेक्शन 144B की जो स्कीम है, उस स्कीम में डिपार्टमेंट वाज अंडर ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी टू द एसएससी ऑन ऑल दीज 3 पॉइंट्स। आपको शो कॉज नोटिस भी इशू करना है, आपको ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भी देना है। अगर किसी एसएससी ने ड्यू टू कोविड एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन फाइल की है, कंसीडरिंग आपको उसकी इम्पॉसिबिलिटी की सर्कमस्टेंसेस को समझते हुए, मुश्किल हालात को समझते हुए आपको उसकी एडजॉर्नमेंट को भी एंटरटेन करना है, और किसी ने यदि आपसे वर्चुअल हियरिंग मांगी है तो आपको उसको इफेक्टिव हियरिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देनी है, राइट? अब डिपार्टमेंट ने ये 30 अप्रैल की लिमिटेशन को देखते हुए नंबर ऑफ असेसमेंट्स अंडर द फेसलेस assessment scheme are completed either without issue of show cause notice or without issue of draft assessment order or without providing an opportunity for virtual hearing or without entertaining adjournment application। और बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि ऐसे असेसमेंट कंप्लीट हुए कि लॉकडाउन में ही आपने शो कॉज नोटिस दिया, लॉकडाउन में ही आपने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर दिया, और लॉकडाउन में ही आपने असेसमेंट कंप्लीट कर दिया।
Now there is a huge influx of writ petition before various high courts in India. ये जितने भी असेसमेंट कंप्लीट हुए हैं, जिनका भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेशन हो गया है, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, एंड हाई कोर्ट्स हैव बीन वेरी लिबरल इन ग्रांटिंग रिलीफ. अब हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ये जितने भी असेसमेंट without providing any effective opportunity to the SSC, department knowing fully well that the SSC will not be able to make compliance of the notices issued during this pandemic, तो उन्होंने यूनिलैटरली अपने सारे असेसमेंट कंप्लीट कर लिए. दैट कैन नॉट बी परमिटेड. तो वेरियस हाई कोर्ट्स ने रिट एडमिट भी किए हैं, रिलीफ के ऑर्डर दिए हैं और असेसमेंट ऑर्डर को क्वैश किया है कि आपको नेशनल फेसिलिटी असेसमेंट सेंटर को दोबारा से अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी. तो अब ऐसे केसेस में लोगों के पास दो रास्ते हैं. यदि आपका इस तरीके से कोई असेसमेंट कंप्लीट हो गया है, नाउ यू हैव टू ऑप्शंस. या तो आप एक सीआईटी अपील के पास आप अपनी अपील फाइल करेंगे उस ऑर्डर के अगेंस्ट, फिर आपको रूल 46 में जाके एडिशनल एविडेंस की पिटीशन देनी पड़ेगी, वहां पर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट एड्यूस करने पड़ेंगे, एंड यू विल हैव टू प्रे फॉर स्टे ऑफ डिमांड और एटलीस्ट 20% आपको जमा कराना पड़ेगा, अदरवाइज रिकवरी प्रोसीडिंग्स आपके सर पे खड़ी रहेंगी. And other option is to file a writ petition before the High Court and seek another opportunity before the assessing officer himself. तो ये सेक्शन 148 को लेकर और फेसलेस असेसमेंट को लेकर, these notifications issued under TOLA have created a complete legal mess. और उस legal mess का impact ये है, now the high courts, various high courts have been, there is a huge influx of writ petition challenging the notices issued under section 148 on or after 1st April 2021 and challenging the assessments, faceless assessments which are completed during this period of second wave of pandemic of COVID. तो ये एक सारी जो मैच थी, ये हमने लीगल कॉम्प्लिकेशन इस लिमिटेशंस की समझी है और इसके अलावा दो तीन और छोटी छोटी बातें बताकर मैं अपनी बात को पूरी करूंगा. तो आप अपने इंटरेस्ट को वॉच करिए, लॉ को समझिए, लॉ को समझने के बाद व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट डिसीजन इन योर केस, आप उसको समझिए. और व्हाटएवर ओपिनियन आई हैव शेयर्ड इन दिस वेबिनार, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. सो यू आर रिक्वायर्ड टू रीड लॉ, अंडरस्टैंड द लॉ एंड मेक योर ओन इंटरप्रिटेशन. और एक 269 ST में एक वेलकम रिलीफ दी थी कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 मई 2021 तक यदि किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट या उसके रिलेटिव ने अगर कैश में जमा कराए हैं 2 लाख रुपए से ज़्यादा, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर एज वायलेशन ऑफ सेक्शन 269 ST. और उसमें सिर्फ आपको पेशेंट का और उसके रिलेटिव का आधार कार्ड और पैन नंबर और रिलेशन हॉस्पिटल को लेके रखना पड़ेगा. सो विद दिस आई थिंक संपूर्णा जी, जो टॉपिक आपने मुझे दिया था और जो जैसा आपने मुझसे डिमांड किया था, आई हैव बीन एबल टू कंप्लीट द टॉपिक एंड कन्वे माय डेलिब्रेशन. एंड विद दिस आई वंस अगेन कन्वे माय थैंक्स टू विवेक खुराना जी एंड एंटायर टीम ऑफ CASansar.com. और मैंने देखा कि इस कोविड के पेंडेमिक में भी और डिस्पाइट ऑफ हैविंग ह्यूज लॉस ऑफ लूजिंग हिज फादर एंड मदर, मैंने देखा कि विवेक खुराना जी हैज कंटिन्यूड हिज प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम और कंटिन्यूसली आप लोगों के वीडियोस आते रहे, आपने लोगों को ऑक्यूपाई करके रखा. यू आर डूइंग ट्रेमेंडस जॉब, यू आर इम्पार्टिंग वेरी गुड नॉलेज एंड माय बेस्ट विशेस टू CASansar.com. With this I conclude. Thank you Sampurna and thank you CASansar.com. Thank you so much sir for joining with us and sharing knowledge with our audience. And I hope everyone queries has been completely solved and everyone have enjoyed this session. Thank you so much sir for sparing time for CASansar, and it's really good to have you with us.